Hello, students. How are you? I hope that all of you are well and good. Most welcome you in this new video. Before explaining the next paragraph, I am going to discuss with you the previous paragraph. I just want to recollect the paragraph so that the study could be easy to understand. So, in the previous paragraph, I told you that the writer talks of her journey aboard a Russian research vessel named the Academic Sokolsky. She says that they were heading towards Antarctica, which is the coldest, driest, and windiest continent in the world. Her journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. It involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and at least as many as ecospheres. By the time she actually set foot on the Antarctic continent, she had been traveling over 100 hours in combination of car, aeroplane, and ship. Her first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape was one of relief. Its immensity and its isolation filled her with deep wonder. She also wondered how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. 650 million years ago, there existed a giant amalgamated southern supercontinent. It was Gondwana. So, students, in the paragraph, I told you all this, and now I am going to discuss with you the next paragraph. And I want to tell you something more about this about the basics of this lesson. So this Gondwana is centered roughly around present day Antarctica. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene. The climate was much warmer. There was a huge variety of flora and fauna. Gondwana thrived much thrived for 500 million years. Then, around the time when the dinosaurs disappeared and mammals took their place, the landmass was forced to separate into countries. It shaped the globe much as we know it today. To visit Antarctica is to be a part of that history. It is to get an idea of where we have come from and where we could possibly be heading. It can be pretty mind boggling to imagine India pushing northward, jamming against Asia and forming the Himalayas. It is equally mind boggling to imagine South America to join North America. So, till that much I told you in the previous paragraph, and in the coming paragraph, I am just going to explain the next thing. And before explaining the next paragraph, I just want to discuss with you a few questions from the previous paragraphs. And these questions are important. I hope so ki you know the answer of this question. If you know, it is good. If you don't know, so this you should learn. So, first question is, what unique opportunities does Antarctic environment provide to the scientist? तो साइंटिस्ट को वो कौन सी यूनिक जो अपॉर्चुनिटी मौके मिलते हैं जो ये अंटार्कटिका के बारे में कौन सी जो यूनिक जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या है, वो खास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है. तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि द स्टडी ऑफ अंटार्कटिक कैन टेल हाउ आवर ग्लोब टुक इट्स प्रेजेंट डे शेप. तो इसकी शेप प्रेजेंट शेप कैसे उसे मिली. प्रेजेंट में जो हम अभी अर्थ को देख रहे हैं ये अंटार्कटिक
पर जाने के बाद ही ये बात हमें पता चलती है। अंटार्कटिका हैज इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि यहां पर कार्बन के रिकॉर्ड्स मिले हैं। तो 500,000 years ओल्ड, 500,000 मीन्स की होता है 5 लाख, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 500,000 मीन्स 5 लाख। तो 5 लाख जो ईयर्स पुराने कार्बन के रिकॉर्ड मिले। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए यहां पर पास्ट की हम स्टडी कर सकेंगे। 5 लाख ओल्ड जो 5 लाख ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स यहाँ मिले। कार्बन का मतलब होता है कि फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो कि हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें जिंदा थी, अब उनके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो हमें मिले हैं, और कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू हम उनकी स्टडी कर सकते हैं कि ये एनिमल्स उन एनिमल्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। और जो कार्बन जो रिकॉर्ड्स है वो एक्चुअली 5 लाख ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स वहाँ मिलता है। वो जो जीवाश्मों के अंग हैं, जो भी वो जो एनिमल्स उस जमाने में थे, डायनासोर्स वगैरह, उनकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो बचे हुए भाग हैं, तो वो मिलते हैं। उनके जरिए हम ये जान सकते हैं कि ये जो है, तो इससे हमें उस जमाने के बारे में जानने को मिलता है, पुराने हिस्ट्री के बारे में, वो पास्ट में लाइफ कैसी थी इसके बारे में जानने को मिलता है। दे आर ऑल ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, तो आइस की लेयर्स में वो सब ट्रैप हो गए। Thus the study of this region can tell about the Earth's past, तो इस तरीके से हम अर्थ की जो पास्ट के बारे में हम जान सकते हैं। It can also tell about its present and future, तो इसके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी हम जान सकते हैं। It receding glaciers and collapsing ice shelves tell how real the threat of global warming is, जो आजकल जो रिसीडिंग हो रही है, जो collapse हो रहे हैं आइस शेल्व्स, जो आइस ब्लॉक्स, जो वहाँ पर जो आइस ब्लॉक्स जो हैं, जो आइस बर्ग जो हैं, जो आइस के जो माउंटेन्स हैं, वो किस तरह से पिघल रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वहाँ के पहाड़ों का टूटना से मालूम पड़ता है कि किस तरीके से ये जो है, ये जो प्रेजेंट डे जो कार्बन का जो एमिशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से ये पहाड़ टूट रहे हैं और ये आइस ब्लॉक्स टूट रहे हैं, तो कार्बन का कितना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये केवल हम अंटार्कटिका जाकर ही पता लगा सकते हैं। इसको हम अभी अर्थ में रहकर नहीं समझ सकते, इसलिए अंटार्कटिका की जर्नी में राइटर ने ये बता रखा है कि जर्नी से उसे ये मालूम पड़ा कि जो पास्ट में लाइफ कैसी थी, पास्ट को ह्यूमन जो बीइंग का जो पास्ट जो अर्थ जो थी पास्ट में कैसी थी और फ्यूचर में कैसी होगी, इस और प्रेजेंट में कैसी है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि जब देखिए जब बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो फिर अर्थ में यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ है कि अर्थ में एक फ्लड टाइप का आ जाएगा, और जिससे कि लाइफ जो है वो जो है ऑलमोस्ट फिर जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कार्बन के एमिशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, और कार्बन के एमिशन की वजह से ही और जो हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो है क्लाइमेट चेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन है था और जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस एंड साइलेंस प्रीवेल्ड इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग समर, कि समर में जो ब्राइटनेस है जो और साइलेंस है जो अंटार्कटिका में होता है उसके बारे में बताइए, किस तरीके का होता है, किस तरह की ब्राइटनेस होती है। इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग समर डेज गो ऑन एंड ऑन फॉर 20 आवर्स। तो देखो अंटार्कटिका में जो समर में गर्मी के दिनों में डेज गो ऑन एंड ऑन फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स दिन ही होता है। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों तरफ शांति होती है। ओनली occasionally one can hear the blowing of an avalanche or the breaking of an ice sheet, और कभी कभी हमें जो है केवल जो एवलांस है, जो बर्फ का जो पहाड़ है उसके टूटने का
और उसके टूटने की आवाज़, जो आइस शीट है, आइस ब्लॉक्स हैं, उनके टूटने की आवाज़ आती है। देयर आर माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट लाइक मिजेट्स एंड माइट्स, और वहाँ पे बहुत माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स हैं। एंड देयर आर ऑल्सो माइटी ब्लू व्हेल्स, और वहाँ पर बहुत बड़ी ब्लू व्हेल भी है। और जो कि इससे मालूम पड़ता है कि द वर्ड शॉर्ट ऑफ ब्राइटनेस एंड साइलेंस प्रीवेल्ड इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग समर। समर में कैसा साइलेंस और कैसी चमक रहती है, तो इसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बता दिया। तो ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ डिड अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन शी फर्स्ट सॉ इट, कि राइटर ने जो अंटार्कटिका को देखा पहली दफे, तो उसने क्या मतलब कैसा उसे हैरानी क्यों हुई। देखिए ये चीज़ें मैंने पढ़ा रखी, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें, ताकि हम बेहतर तरीके से हम लेसन को समझ सकें। तो कि अंटार्कटिका में वो हैरान क्यों हुई राइटर फर्स्ट, जब उसने देखा फर्स्टली द राइटर फर्स्ट इमोशन वाज दैट ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट। तो फर्स्ट जो उसका रिएक्शन था वो बड़ा अमेजमेंट से भरी हुई थी। इट वाज रिलीफ एट द साइट ऑफ द अंटार्कटिकास एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। जब उसने अंटार्कटिका को देखा तो अंटार्कटिका जो बहुत ही फैला हुआ था, लाइट स्केप जो उसका भूत दृश्य है, जो लैंडस्केप है, जो लैंड मास है, वो पूरी तरीके अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, पूरी तरीके से जो है ब्लू था, वाइट था, ठीक है। और होराइजन में जो है नीला, जो ब्लू होराइजन आकाश का रंग जो था वहां पे नीला क्लियर ब्लू था। और देन शी वॉज अमेज्ड एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, और ये बिल्कुल दुनिया से अलग था। जो अंटार्कटिका है दुनिया से पूरी तरीके से अलग था और इमेंसली आइसोलेटेड। शी वंडर्ड हाउ देयर कुड हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो उसको बड़ी हैरानी हो रही थी कि इंडिया और अंटार्कटिका एक ही थे। ये बड़ी ताजुब की बात है, क्योंकि वो ये इसलिए वो हैरान हो रही थी। तो बच्चों इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है आपकी बुक में, जैसे कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको वो ये है कि हाउ डू ज्योग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यानी कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल जो इवेंट्स हैं, हमें इंसानों की हिस्ट्री को जानने में कैसे मदद करती है। तो बाय वॉचिंग ज्योग्राफिकल फिनोमिना वी कैन इमेजिन हाउ स्मॉल चेंजेस वुड हैव कॉज्ड अ बिग चेंज ओवर सेंचुरीज, कि एक छोटी सी चेंज किस तरीके से एक बहुत बड़ी चेंज को ला सकती है, क्या कारण बनती है। दे हेल्प यूज टू अंडरस्टैंड वेयर वी केम फ्रॉम एंड वेयर वी माइट बी हेडिंग, और हम किस तरह से आए हैं और किस ओर जा रहे हैं। ये बातें हमें केवल जब हम किसी जोग्राफिकल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं तभी ये मालूम पड़ता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू more about the next paragraph, and then the questions answers we will try to find out the answers of the question and answer. Thank you very much. God bless you all.